Yes, sir. Electric and magnetic field here, the electrons will move straight and it will hit here at the center of this tube. This tube is made up of fluorescent material, and when electrons hit on this tube, then the bright spot of light can be seen at this point. So if the electric force is more, then this electron will be deflected upward because here is a positive potential. Electron has a negative charge and it will be attracted towards positive potential. Then electron will move in this direction. And when there is a magnetic field, according to Fleming's left hand rule, if we apply the Fleming's left hand rule, the magnetic force acts downward in this direction. So if we set the value of electric and magnetic field in such a way that electric force upward is equal to the magnetic force downward, then this uh, then the spot will also be in this at this point, because the electric force upward is cancelling the effect of magnetic force downward. So at that stage, when the electric and magnetic forces on the charged particle are equal and opposite direction, we can we can uh, we can take this formula y is equal to q e l square over 2 mv square, and we can use this formula to to take or to measure the deflection y. What is y? Y is the deflection of a charged particle from central point to the above or below the central point. So if we use this formula, then please go to the next page. Then QE magnetic when magnetic force is equal to the electric force, then QE is equal to QVB. You know this. And when QE is equal to QVB, Q and Q will be cancelled, then velocity is equal to E over B. Okay. So if you put this value of velocity, which is equal to the electric field over magnetic field, when the fields are crossed fields, if you put this uh, value of the velocity in the previous equation, which was shown in the previous page, then it becomes equal to m over q, and if you rearrange that, then it becomes m over q b square l square over 2ye. Okay, so in this way you can see what is m over q or q over m. It is charge to mass ratio. Okay, so Thomson found that this value m over q is always same for all the particles which are coming out from the filament. And he also uh, his measurements of m over q also uh, he also measured the mass of the charged particle, and he said that the this particle has mass around 1000 times less than the hydrogen atom. So this kind of charged particle was later claimed as the discovery of electron. ठीक है, इसको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के तौर पर देखा गया, और इस चीज और यही एक्सपेरिमेंट था जहां पर इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुए। यानी किस तरह से उसने इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर किए, उसने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का ट्रिक एक इस्तेमाल किया, उसका फिजिक्स का एक प्रिंसिपल अप्लाई किया, और उस प्रिंसिपल को अप्लाई करने से उसने चार्ज टू mass ratio of the electron मालूम कर लिया. So this was a great achievement. तो उसके बाद क्रॉस फील्ड्स में एक चीज आती है हॉल इफेक्ट। अभी हमने देखा कि अगर इलेक्ट्रॉन वैक्यूम में मूव कर रहा हो, देन
if you apply the magnetic field or electric field, then you know the electron is deflected by the electric or magnetic field. So what if the electron is moving in the solids? अगर कोई इलेक्ट्रॉन सॉलिड में मूव कर रहा हो तो उसके ऊपर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो क्या वो डिफ्लेक्ट करेगा या नहीं करेगा? ठीक है, तो एडविन हॉल, और उस वक्त उसकी एज सिर्फ 24 इयर्स थी, उसने उस वक्त डिस्कवर किया कि हाँ जी ऐसा होगा। उसने एक्सपेरिमेंट्स किए और उसने प्रूफ दिया कि अगर आप चार्ज कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो हॉल इफेक्ट है, आप में से कुछ ने फिजिक्स लैब में भी किया होगा। तो इस चीज को यहाँ पर ये इस फिगर में शो किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इन दिस फिगर here is a strip of solid. Okay, electron is moving in this direction. Okay, electron is moving in this direction. Oh, sorry, uh, the conventional charge is moving in this direction. It means electrons are moving in the opposite direction. When the electron moves in the opposite direction and the magnetic field is applied, then this electron is deflected in this direction. Okay, electron is deflected in this direction. So this deflection of the charge particle was first discovered by the scientist Edwin Hall using the उसने परपेंडिकुलर अप्लाई की और उसने करंट फ्लो कर दिया, और करंट फ्लो करने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए और वो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से राइट पर डिफ्लेक्ट कर गए। अच्छा, अब अगर इलेक्ट्रॉन राइट पर डिफ्लेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ कर रहे हैं तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि इस तरफ ये जो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ जाते हैं, ये नेगेटिव चार्ज आप देख रहे हैं, ये नेगेटिव 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 चार्ज इस साइड पर आता है, तो पॉजिटिव चार्ज इस साइड पर आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज इस साइड पे आ जाता है। जब पॉजिटिव इधर होगा नेगेटिव इधर होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड शो की हुई। सो दिस फील्ड which is created by the accumulation of positive and negative charges on the edges is known as हॉल फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हॉल फील्ड या हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये हॉल फील्ड यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाती है, क्योंकि देखें चार्ज पार्टिकल जो है वो कहाँ डिफ्लेक्ट कर रहा था, राइट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा था, और ये जो फील्ड क्रिएट हुई इसका पॉजिटिव पोटेंशियल इधर है, ये इलेक्ट्रॉन को इस साइड पर अट्रैक्ट करेगा। तो वो स्टेज जहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो इस साइड पर इस साइड पर ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये ये मैग्नेटिक फोर्स देखें राइट साइड पे लग रही है, इसलिए राइट पे गया, तो मैग्नेटिक फोर्स उसको राइट साइड पर लेकर आना चाह रही है, इलेक्ट्रिक जो हॉल फील्ड बनी वो इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट साइड पर लेकर आना चाह रही है। तो जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल हो जाए तो फिर इस चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी, मजीद कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी और ये स्ट्रेटली मूव करेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को ये इस फिगर को ध्यान में रखें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, तो ये जो हॉल पोटेंशियल सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आपकी साउंड फिर जो है वो और क्लियर नहीं पोटेंशियल है। डिफरेंस है, आपको पता है पोटेंशियल डिवाइडेड। ओके, तो आप देखें यहाँ पर
कि जब ये जो हॉल फील्ड आपने पीछे देखी थी, हॉल फील्ड की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स के दरमियान। तो पोटेंशियल डिफरेंस आप किस तरह निकाल सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E इंटू डी। यहाँ से आप ये E इंटू डी से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं आप, ठीक है। अब आपको पता है कि जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जो लेफ्ट और राइट वाली थी, जो भी हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे, अगर वो इक्वल हो जाएं तो आपके पास आता है इलेक्ट्रिक फोर्स। ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, जब ये मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल हो जाए, मैग्नेटिक फोर्स है ई वी क्रॉस बी, ठीक है, ये है ई ई। तो जब ये आपस में इक्वल हो जाती हैं तो आप वी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। वी डी विल इक्वल टू ई ओवर बी, ठीक है। अच्छा, जो ड्रिफ्ट स्पीड है, ये हमने 26 चैप्टर जो है आपके सिलेबस में नहीं था, लेकिन इसमें से हम ये देख सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जे ओवर एन ई के इक्वल होती है, वेयर जे इज द करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया, and n are the number of electrons, number density per unit volume, and E is the electronic charge. INEA. VD is equal to I over NEA. So you can put the value of VD from equation 28.10 and you can use it in 22.11. Then, and if you rearrange that, then N will be equal to BI over VLE, where B is the magnetic field, I is the current, V is the potential difference, L is the length or thickness of the sample, and E is the electronic charge. अब यहाँ पर आप देखें कि N क्या है? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। आप नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, जी तौसीफ आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? यस, बोलें। जी तौसीफ बोलें। यस, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन। ओके, लेट मी फिनिश. Okay, let me finish first and then you can ask because it is going to end. So, सर ओके सर। अगर आप ये दो इक्वेशन यूज करें 28.10 एंड 28.11, तो आपके पास n की वैल्यू आती है BI ओवर VLE। n है चार्ज नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स या नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब आप देखें कि राइट साइड पर क्या क्वांटिटीज हैं। राइट साइड पर वो क्वांटिटीज हैं जो कि इजीली मेजर की जा सकती हैं। देखें, आपने जितनी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की वो आपको पता है, जितना करंट वायर में या स्ट्रिप में फ्लो हो रहा है वो आपको पता है, वी पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, वोल्ट मीटर से मालूम कर लें, वो आपको पता है, एल लेंथ ये आपको पता है, ई इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होता है ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये भी आपको पता है। तो राइट साइड पर सारी जो क्वांटिटीज हैं वो इजीली नोन क्वांटिटीज हैं, ये सारी, ठीक है, ये सारी इजीली नोन क्वांटिटीज हैं। लेकिन इससे आप जो लेफ्ट साइड पर निकाल रहे हैं वो क्या है? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। ये नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स निकालना इतना आसान काम नहीं है, ये आप इस डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हॉल इफेक्ट का ये फैक्ट, ये रूल यूज करते हुए आप नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स मालूम कर सकते हैं इजीली। जो राइट साइड पर चीजें दी हुई हैं उनको अगर आप उनका पता लग जाए तो आप नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स मालूम कर सकते हैं इजीली। तो ये बहुत बड़ी एप्लीकेशन है हॉल इफेक्ट की कि इससे आप किसी भी मेटल में या सेमीकंडक्टर में और कुछ इंसुलेटर्स में भी कुछ हद तक नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अब जिस तरह सेमीकंडक्टर में आपको पता है कि जब हम बोरॉन को ऐड करते हैं सिलिकॉन में, ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज कैरियर इंक्रीज कर सकते हैं, नेगेटिव चार्ज, लेकिन उनको कितना इंक्रीज करना है? किसी खास एप्लीकेशन के लिए हमें बाजू का कम कैरियर डेंसिटी चाहिए होती है, किसी के लिए ज्यादा कैरियर डेंसिटी चाहिए होती है। तो आपने अगर एन टाइप मटेरियल बनाया है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने बने भी हैं जितने के आपने जितने के आपको अपनी खास एप्लीकेशन के लिए चाहिए। तो इस चीज को चेक कैसे किया जाता है? फिर उसको हॉल इफेक्ट के जरिए चेक किया जाता है, और ये हॉल इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट यूज
एक्सपेरिमेंट करते हैं और 28.12 इक्वेशन को यूज करते हुए नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हॉल इफेक्ट की एप्लीकेशंस हैं। हॉल इफेक्ट की मेन एप्लीकेशन जो हमारे पास आती है, ठीक है, वो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जो है उनकी कैलकुलेशन है कि हम नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स मालूम कर सकते हैं। और हॉल इफेक्ट आया किस तरह से, मतलब कि किस तरह से उसने किया हॉल इफेक्ट, उसने क्रॉस फील्ड्स को यूज करते हुए किया कि क्रॉस फील्ड अगर आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स चार पार्टिकल के ऊपर, ठीक है, तो उनकी जो डिफ्लेक्शंस हैं उससे उसने नंबर ऑफ चार्ज नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स ये उसने मालूम की। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहाँ तक है और आप अब कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी सर वो जब 28.10 में जब हमने उसको कटिंग की तो वो बन गया v इज इक्वल्स टू e ओवर v, तो e ओवर v इज इक्वल्स टू j ओवर n e कैसे बना, ये बता दें थोड़ा सा। नहीं, ये देखिए, ये जो j ओवर एन ई वी डी इज इक्वल टू j ओवर एन ई है ना, ये एक डिफरेंट इक्वेशन है जो कि 26 चैप्टर में दी हुई है। यस ठीक है, ओके सर। वेलोसिटी होती है ना, ये करंट डेंसिटी पर यूनिट नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट, ये अलग इक्वेशन है। ओके सर जी। ऊपर से ऊपर जो VD आएगी ना, उस VD को आप इसमें पुट करके उसको रीअरेंज करें तो इक्वेशन 28.12 आ जाएगी। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है बस। जी, और कोई क्वेश्चन करना चाहता है? सर इसके न्यूमेरिकल्स कहाँ से करने हैं? कौन से न्यूमेरिकल्स हैं इसके? कि इसके न्यूमेरिकल्स नहीं है, इसके न्यूमेरिकल्स आपके सिलेबस में नहीं है। सर ये बुक आपने हमें शेयर कर दी थी सीआर को। हाँ जी, ये बुक आप लेक्चर की स्टार्ट में कर, ये जब क्लासेस आपकी स्टार्ट हुई हैं यस सर। पहले जब भेजी ओके सर। डाउनलोड कर सकते हैं आप। सर नाम बता दें, वो हॉलीडे वाली हॉलीडे है। एंड हॉलीडे एंड प्रेजेंट। यस सर, ये बुक तो है लेकिन उसमें ये वाला चैप्टर 2 है, ये चैप्टर 28 चैप्टर ओके नंबर सर। 28। ओके सर। जी, और कोई क्वेश्चन करना चाहें? सर कैन यू एक्सप्लेन ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फॉर्मूला इन्होंने कैसे निकाला? ये ना एक्चुअली आपने 28 चैप्टर नहीं पढ़ा। 28 चैप्टर में जो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वो j ओवर एन ई के इक्वल आती है। आप 26 चैप्टर में ये देख लें, ठीक है, तो ये इसमें दिया भी हुआ है कि इक्वेशन 26.7 है मेरा ख्याल है, तो इक्वेशन 26.7 में ये बताया हुआ है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो j ओवर एन ई के इक्वल आती है और j होता है करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो इस तरह ये वाली इक्वेशन यूज करके 28.11 में पुट कर दें 28.10, वहां से VD की वैल्यू यहां पर पुट कर दें तो आपके पास 28.12 आ जाए। ओके सर। ठीक है, तो एक मिनट जरा मुझे अब अटेंडेंस ले लूं मैं। आप बोल भी दें और अपना हैंड रेज कर दें जब आपका रोल नंबर बोलूं तो, ठीक है। तो सबसे पहले रोल नंबर 41, रोल नंबर 41,
Roll number 41. 42. 42. Raise your hand. Yes, sir. 43. Yes, sir. Okay. 43. Okay. 44. 44. Present, sir. Okay. 45. Present, sir. 46. ब्रदर सर आप सरों को कहा हुआ था कि आप इस तरह से अपने सारे आईडीज बनाएं, जिस तरह 46 डैश नूर सुल्तान इन्होंने बिल्कुल ठीक बनाया हुआ है, या 41 रोल नंबर, ठीक है। तो जिन्होंने दूसरे पैटर्न पे किए हुए हैं वो सही कर लें, अटेंडेंस लेने में भी आसानी हो जाती है। ओके। हेलो सर। 47 47 सर प्रेजेंट सर 48 48 प्रेजेंट सर। 48 कहाँ पे हैं? प्रेजेंट सर। क्या नाम है आपका? जुल नूरैन। ओके। 49 प्रेजेंट सर। 50 50 51 प्रेजेंट सर। 52 53 प्रेजेंट सर एक्सक्यूज मी सर, सर हाँ? ये रोल नंबर 50 भी प्रेजेंट है, उसका नेट सही नहीं चल रहा। रोल नंबर 50 present. ओके। 54 प्रेजेंट सर प्रेजेंट सर। 55 ठीक है। सर 56 ये रोल नंबर 41 है, तो ये पहले हैंड रेज नहीं हुआ था, ये अब कर लिया। अच्छा। 56 Present, sir. 57 प्रेजेंट सर, सैयद मुर्तजा। 58 प्रेजेंट सर 58। ओके। 59 प्रेजेंट सर 60 प्रेजेंट सर। 61 61 62 63 प्रेजेंट सर। सर 63 सर प्रेजेंट। 64 Present, sir. अली सर साजिद ओके। सर रोल नंबर 41 है। सर 54 प्रेजेंट है। 54 66 66 नहीं है। तैमूर खान 67 प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। Present. 69 सर प्रेजेंट मैंने सर सर को 69 बात कही कि ना 41 प्रेजेंट है। 70 ये प्रेजेंट। अच्छा सर 71 अच्छा, क्योंकि ना मेरा पहले 72 थोड़ा ना मसला हो रहा था, अब मैंने बोल दिया। Present, sir. 72. 69 प्रेजेंट ओके। 73 Present, sir. 74 74 नहीं है। 75 हाँ नोट 75 नहीं है। 76 प्रेजेंट सर 77 77 नहीं है।
ओके और आप क्वेश्चन करना चाहें, कुछ पूछना चाहें? सर वो 52 का माइक इशू आ रहा था, वो कह रहा है कि मेरी अटेंडेंस लग गई है कि नहीं। वो मैंने देख लिया था, ये 52 प्रेजेंट थे, उनकी अटेंडेंस हो गई है। थैंक यू। Okay, Ali Sajid, please send me the previous lectures and this lecture also. Okay. Okay, sir. Okay, we will see next week. Okay, on okay, Tuesday. sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz, Okay. sir. Allah Hafiz. Sir, Allah Hafiz.